Good morning, dear children. Now I start here the question number third. In the last video, I told you question number first and second in exercise 10.7. So today we start here question number third of 10.7 exercise class 4 maths, and this is the second video of this exercise. So we write here part 2. Okay. Now the question number third is Sanya bought 105 meter of rope. She used 53 meter 40 centimeter. Find the remaining length of the rope. So Sanya bought rope means the length of rope is 105 meter and she used 53 meter 40 centimeter of rope. So how much rope is left? Means कितना rope बचा unused है. Means length of unused rope because 105 meter. This is 53 meter 40 centimeter. So but here is only 105 meter. So we write here 105 meter and 00 centimeter because this number is she used 53 meter 40 centimeter. क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर लिखा है, इसमें सेंटीमीटर में कुछ नहीं है तो वहाँ पे 0 लगा देंगे. Now 105 meter 53 meter 40 centimeter. So 10 0 minus 0 equals 0. 10 minus 4 equals 6. This is 4 minus 3 equals 1, and this one is 10 minus 5 equals 5. Means and the length of remaining rope is 51 meter 60 centimeters. Okay. We subtract here 53 meter 40 centimeter from 105 meter. Okay. Now the question number 4. A drum full of rice weight 316 kg 230 gram. Means the weight of tin and rice both. The weight of tin and rice. किसी भी जैसे ये चॉक बॉक्स है, इस चॉक बॉक्स का वेट है सपोज 1 kg. अब इस चॉक बॉक्स का वेट जो है 1 kg है, तो ये सिर्फ चॉक का वेट नहीं है, इसके अंदर चॉक जो है उसका वेट है और ये जो बॉक्स है उसका भी वेट है. जैसे आप कहीं कोल माइंस में आप जाएंगे तो क्या जो कोल होता है, कोल का मेजरमेंट कैसे करते हैं? पूरा ट्रक का ट्रक मेजर कर देते हैं. और ट्रक का जब मेजर करते हैं तो पहले क्या करते हैं? पहले खाली ट्रक का मेजर करते हैं जब उसमें कोयला नहीं रहता है, और फिर कोयला भर के मेजर कर देते हैं, और फिर जितना वेट होता है टोटल कोयला भरने के बाद उसको खाली ट्रक का वेट का माइनस कर देते हैं तो टोटल कोयले का वेट आ जाता है. ये नहीं कि कोयले को उठा कर को मेजरमेंट करते हैं, ऐसा नहीं. तो उसी तरह ये भी कि a drum full of rice weight 316 kg 230 gram. The mass of the empty drum is 21 kg 765 gram. So the mass of the rice equal 316 kg 230 gram minus 21 kg 765 gram. So 0 10 take the carry, 10 minus 5 equal 5, not 2. Take the carry 12, 12 minus 6 equal 6. Here 1, not take the carry 11, 11 minus 7 equal 4. Now here 5, 5 1 minus 1 equal 4. Now take the carry 11, 11 minus 2 equal 9, and this one is 2. So we write here 2 means hence the weight of rice is 294 kg 465 gram. Means the weight of rice here what is asking? Mass of the rice. Rice का weight कितना है? क्योंकि इसमें भी राइस और ड्रम दोनों का वेट बता रहा है. तो जब ड्रम का वेट को हम माइनस करेंगे तो राइस का वेट आ जाएगा. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. My water had 1 liter of water. I drank 775 milliliter. How much water was left in the bottle? So
a bottle had 1 liter, a bottle had 1 liter of water. एक बॉटल में कितने लीटर पानी था? 1 लीटर. Drank 775 मिलीलीटर और उसको ड्रैंक कितना किया? पी कितने गए हमने? 775 मिलीलीटर हमने पानी को पी गया. तो अब उस बॉटल में कितने मिलीलीटर पानी बचा? क्योंकि 1 लीटर था, 1 लीटर में से कितने मिलीलीटर तो पी गए, तो मिलीलीटर में ही बचेगा. तो वाटर वाज लेफ्ट इन द बॉटल, सो 1 लीटर. देखिए यहाँ पे मिलीलीटर में है और ये लीटर में है. तो हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, या कि आप पहले ये मिलीलीटर में है तो लीटर को भी मिलीलीटर में चेंज कर दीजिए. तो 1 लीटर इक्वल 1000 मिलीलीटर and this one is already in milliliter. Then we subtract here this type. 10 minus 5 equal 5, 9 minus 7 equal 2, 9 minus 7 equal 2 and 0. This one is milliliter. आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ मिलीलीटर में और ये लीटर में, तो या तो आप इसको चेंज करें या ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं. 1 लीटर इधर कुछ नहीं है तो आप मिलीलीटर की जगह 0 लगाइए. इधर लीटर, this one is milliliter, so we write here under milliliter 775 milliliter. Then 10 minus 5 equal 5, 9 minus 7 equal 2, 9 minus 7 equal 2. ये इनको कैरी दिया इसलिए ये होगा 0, 0 minus 0 equal 0. मींस लीटर में कुछ नहीं आया, सिर्फ मिलीलीटर में आया. तो we write here thus 225 milliliter water was left in the bottle. Okay? तो आप दोनों टाइप से सॉल्व कर सकते हैं. ये भी आपका राइट है और ये सिर्फ मिलीलीटर में है और ये 1 लीटर में. तो आप इसको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, ये मीटर में है बट ये मीटर और सेंटीमीटर वो दोनों में है, इसलिए हमें इसको चेंज नहीं करें. बट ये इसको चेंज करने से हो सकता है, तो आप चाहे तो ऐसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 6. Sorry. Now Mr. Sen made a fruit salad. He used 1/2 kg guava, 1/4 kg apples and 3/4 kg banana. What is the total mass of the fruit used? Now look at here. Sen made a fruit salad. एक जिनका नेम सेन है, उन्होंने एक फ्रूट सलाद बनाया. ही यूज्ड, वो बता रहा है 1/2 kg गुआवा का यूज किया, अमरूद, 1/4 kg एप्पल का यूज किया एंड 3/4 kg बनाना का यूज किया. तो टोटल व्हाट इज द टोटल मास ऑफ दीस फ्रूट्स? उस फ्रूट्स का टोटल मास कितना होगा, टोटल वेट कितना होगा, उन्होंने कितना यूज किया. तो हम क्या करेंगे, टोटल पूछ रहा है इसलिए हम तो सबको प्लस करेंगे. बट हियर इन दीज क्वेश्चंस यहाँ पे किलोमीटर, केजी, सेंटीमीटर, मीटर इनमें दिया है. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है. तो फ्रैक्शन में दिया है तो हम इनको फ्रैक्शन में ही ऐड करेंगे. 1/2 plus 1/4 plus 3/4. Okay, now this is a numerator. These are numerator 1, 1, 3 and here the denominator 2, 4, 4. Now look at here. Here the denominators are not equal. All these denominators are there 3 denominators. So these 2 denominators are equal, but one denominator is not equal. So first we take the LCM of all these denominators. यदि डिनोमिनेटर सपोज डिनोमिनेटर इक्वल होते तब तो इनका हम क्या करते 1 + 1 + 3/4. क्यों? क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर जब इक्वल है तो उनका एलसीएम ही सेम आएगा, वही आएगा. बट यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो भले एलसीएम वही ये आएगा, ठीक, बट हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे. अब एलसीएम कैसे लेते हैं, हमने आपको इसके पहले के जो चैप्टर्स पढ़ाए हैं उसमें हमने आपको एक्सप्लेन कर चुका है कि एलसीएम कैसे लेते हैं. डिनोमिनेटर है 2, 4, 4. Now first we divide it by first 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 2 = 4. फिर
2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1। नाउ सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11 13 17 19, these are prime numbers, ओके। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 से इसको 2 1, ये तो ऑलरेडी 1 है, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब ये रिमाइंडर क्या आ रहा है, सब 0 आ गए, तो हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। 2 multiplied by 2 equal 4। Now the LCM equal 4, so we write here, हम यहाँ पे एक लाइन खींचे, और यदि सपोज है 1/4 होता और 1/4 एंड सपोज 2/4 एंड प्लस 3/4, तब हम क्या करते हैं, तब हम ऐसे कर देते, क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, तो जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे ये ऑलरेडी वही आएगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सारे डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं तो जो डिनोमिनेटर है वही उसका एलसीएम आता है, एक कॉमन नंबर हम ले लेते हैं, और फिर 2 + 1 + 3 = 6/4 ऐसे ले लेते हैं, ओके। नो बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, तो हमने इनका एलसीएम लिया तो आया कितना, 4। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, तो जब डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, योर आंसर इज क्वाड्रेंट इज 2। अब 2 से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे, जो क्वाड्रेंट आया उसका मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, तो डिनोमिनेटर क्वाड्रेंट आया था 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, तो वी राइट हियर 2। नाउ सेम मेथड, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, और 1 से मल्टीप्लाई 3 का करेंगे तो आंसर आएगा 3। नाउ प्लस कर देंगे, 2 + 1 3, 3 + 3 = 6/4 kg। अब यहाँ पे देखिए 6/4 kg, ये दोनों लोवेस्ट टर्म में नहीं, लोवेस्ट टर्म मतलब दोनों बोथ नंबर 6 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिविजिबल बाय 2 both numbers, so here we change here into the lowest term, so 6/4 divided by 2, आप कट करके भी ऐसे कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 = 3/2, हमने यहाँ पे डिवाइड करके कर दिया, आपको इजी रहेगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब लोवेस्ट टर्म कब होता है, जब ये दोनों नंबर दोनों डिफरेंट नंबर से डिविजिबल है, जैसे 3 और 2 है, ये 3 और 2 ये 3 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, जब दोनों बोथ नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर डिविजिबल बाय डिफरेंट नंबर, दैट्स मीन दिस इज इन द लोवेस्ट टर्म, सो 3/2 kg। अब 3/2 kg ये किसमें है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हियर वी चेंज हियर इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, so how we change here into the mixed fraction, 3/2, so 2 1 are 2 1, here we write this type, quotient or whole, remainder upon divisor, so quotient is 1, remainder is already 1, and divisor is 2, 1 whole 1 by 2 kg, so we write here 1 whole 1 by 2 kg, means how much fruit is used, total mass of fruit is 1 whole 1 by 2 kg, okay। Now the question number 7, now dear children, question number 7, from 1 liter of milk grandma gives 350 milliliter of milk to the dog and 175 milliliter of milk to the cat, so how much milk cat, so how much milk was left, so dear children, from 1 liter of milk means milk कितना था, 1 liter था, जिसमें से grandma means दादी माँ ने 350 मिलीलीटर मिल्क किसको दिया, डॉग को दिया, एंड 175 मिलीलीटर ऑफ मिल्क टू द कैट को दिया, तो उसने टोटल मिल्क कितना दिया पहले, तो हम ये फाइंड करेंगे। सो बट क्वेश्चन में क्या पूछा, हाउ मच
milk was left. मिल्क कितना बचा? तो पहले तो ये पता कर ले कि हमने मिल्क कितना दिया दोनों को मिला के। तो C gave total milk 350 milliliter plus 175 equal 525 milliliter. अब 525 milliliter मिल्क हमने दे दिया। मिल्क था कितना? 1 लीटर। So milk was left 1 liter minus 525 milliliter. अब देखिए यहाँ फिर से 1 लीटर है, तो हमने वहां पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 4 में मिलीलीटर चेंज करके नहीं सॉल्व किया था, यहाँ पे हमने मिलीलीटर में चेंज करके सॉल्व कर दिया दोनों टाइम से। सो 1 लीटर इक्वल 1000 मिलीलीटर। सो 1000 minus 525 equal 475 milliliter. Means 475 milliliter was left. Okay. So dear children, this exercise is completed. Now the next video I will take exercise 10.8 and 10.9. Okay. Thank you. Have a nice day.